Everyone, today I am going to start with the last topic of the Sales of Goods Act, that is the right of unpaid seller. In my previous video of the performance of contract, in which seller को अपने पार्ट पे, buyer को अपने पार्ट पे कोई ना कोई performance करनी होती है under the contract, and if any of the party fails, then the other party has the right to sue. These rights have been provided from section 55 to section 61, in which अगर seller या फिर buyer अपने part पे performance नहीं करता है, then the other party has the right to sue. चाहे वो specific performance के लिए sue कर सकता है या damages claim करने के लिए sue कर सकता है. But there are some special rights which has been provided to the unpaid seller, which has been provided from section 45 to section 54. Now we'll start with section 45. Section 45 talks about the unpaid seller. So here, unpaid seller is a seller to whom the whole of the price has not been paid or tendered. उसे पूरे पैसे नहीं मिलते हैं या उसे टेंडर्ड प्रॉमिस नहीं किया जाता है अबाउट द पेमेंट, या फिर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट हो रहा है and that negotiable instrument get dishonored, then in that case also the seller will be deemed to be unpaid seller. दोनों सिचुएशन में या एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई हो या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट हुई है एंड इट गेट डिसऑनर्ड, इन दोनों सिचुएशन में द सेलर विल बी डीम्ड टू बी अनपेड सेलर. एंड here seller will also include the agent of the seller. कोई भी ऐसा पर्सन जो सेलर के बिहाफ में गुड्स को डिलीवर कर रहा है या उसके पास पेमेंट रिसीव करने का राइट है, then that agent will also be called the unpaid seller. This has been provided under section 45. Now we come to section 46, which talks about the rights of unpaid seller. So there are three rights. Number one, right to lien, in which the seller has the right to retain the good. Number two, the right to stoppage in transit. And number three, the right to resale. We'll start with right to lien. Right to lien has been provided from section 47 to section 49. Section 47 talks about the right to lien. The right to lien can be exercised when the seller has the possession of the goods. Here it is important that seller के पास goods का possession होना चाहिए. अगर good का possession नहीं है seller के पास, then he cannot exercise this right to lien. And अगर उसके पास goods का possession है तो वो तब तक गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक बायर उसे पूरे गुड्स की पेमेंट ना कर दे. And there are three situations which has been provided under section 47. Number one, suppose अगर delivery and payment concurrent है, at that point only delivery भी होनी है and payment भी होना है, and buyer के intention से ऐसा लग रहा है कि वो शायद payment ना करे या बाद में करे, then at that point the seller has the right that he can retain the goods, and वो उसको बोलेगा कि भाई आप मुझे payment करो तभी मैं आपको delivery दूंगा. Second situation, when the goods are sold in credit. अगर suppose seller और buyer के बीच में contract हुआ है 1 जनवरी को and seller ने बोला है कि मैं आपको 1 मार्च तक का टाइम दे रहा हूं, आप डिलीवरी ले जाओ बट मुझे 1 मार्च तक पेमेंट कर देना. buyer ना डिलीवरी लेता है ना पेमेंट करता है. 1 मार्च का टाइम एक्सपायर हो जाता है. 1 मार्च के बाद बायर आके बोलता है कि भाई मुझे गुड्स की डिलीवरी दे दो. सो हेयर सेलर उससे बोलेगा कि भाई आपका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, अब आप मुझे पेमेंट करोगे तभी मैं आपको डिलीवरी दूंगा. देन हेयर द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स, एंड वो तब तक गुड्स को रिटेन कर लेगा जब तक बायर उसको गुड्स की पेमेंट ना करते. सो इन दिस जो क्रेडिट पीरियड था वो एक्सपायर हो गया है. आफ्टर दैट द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स. नंबर थर्ड सिचुएशन, इन विच द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट. सपोज अगर सेलर ने बायर को कुछ
क्रेडिट पीरियड दिया था, 2 months का क्रेडिट पीरियड दिया, एंड बीच में ही पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, देन एट दैट पॉइंट द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स, बिकॉज यहाँ पे बायर उसको गुड्स के लिए पे नहीं करेगा तो वो रिस्क क्यों लेगा गुड्स को डिलीवर करके, देन एट दैट पॉइंट द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स. This has been provided under section 47. But here it is important कि जरूरी नहीं है कि सेलर ओनर हो गुड्स का, हो सकता है कि बायर ओनर हो. एज इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना है तब भी बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है. सो हेयर अगर बायर के पास ओनरशिप है वो ओनर रहे, बट यहाँ पे सेलर एज अ बेली उस गुड को रिटेन कर सकता है एंड राइट टू लियन वो एक्सरसाइज कर सकता है. नाउ वी कम टू सेक्शन 48 व्हिच टॉक्स अबाउट द पार्ट डिलीवरी. इन दिस अगर सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हुई है, राइट, एंड कुछ डिलीवरीज बायर के पास ऑलरेडी है, कुछ गुड्स बायर के पास है एंड कुछ गुड्स अभी सेलर के पास, उसके पास पोजेशन है गुड्स का, बट यहाँ पे बायर पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, या उसने थोड़ा सा पेमेंट किया है बाकी पेमेंट नहीं किया है, देन एट दैट पॉइंट द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स. जो भी गुड्स का पोजेशन है सेलर के पास, उतने गुड्स का पोजेशन वो अपने पास रख सकता है. ओके, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 48. नाउ वी कम टू सेक्शन 49 व्हिच टॉक्स अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ राइट टू लियन. कब राइट टू लियन खत्म हो जाएगा, ठीक है. नंबर 1, व्हेन द पेमेंट हैज बीन डन बाय द बायर. यहाँ पे पर्पस क्या है, बायर से पेमेंट लेने का, बायर से पैसे लेने का, बट एज सून एज बायर पेमेंट कर देता है द राइट टू लियन विल बी टर्मिनेटेड. फिर सेलर उसको गुड्स डिलीवर कर देगा. सेकेंड सिचुएशन, व्हेन द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड टू द कैरियर. एज I have already told you that जब सेलर गुड्स का पोजेशन कैरियर को देता है, कैरियर इज द पर्सन जो गुड्स को बायर के पास ट्रांसमिट कराता है. सो एज सून एज सेलर उस गुड्स को कैरियर को डिलीवर करता है, सेलर का पोजेशन खत्म हो जाता है गुड्स का. ओके, सो जैसे ही सेलर गुड्स को कैरियर को डिलीवर करता है, then at that time the right to lien will be terminated. And the third situation is when the buyer has the possession of the goods. अगर goods का possession buyer के पास हो गया है, then at that time the right to lien will be terminated. The last is when the seller has waived his right to lien. अगर सेलर ने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया कि भाई मैं राइट टू लियन नहीं अप्लाई करूंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा अगर आपके डिफॉल्ट हो जाता है, देन एट दैट टाइम ऑल्सो द राइट टू लियन विल बी टर्मिनेटेड. या फिर सेलर अंडर सेक्शन 53 बायर को सबसेल करने के लिए एसेंट देता है कि आप जो आपके पास गुड्स है आपने पे नहीं किया बट आप किसी और को सबसेल कर दो, देन एट दैट पॉइंट ऑल्सो the seller's right to lien will be terminated. Okay, this has been provided under section 49. This was all about the right to lien. Now we come to the stoppage in transit. This has been provided from section 50 to section 52. In stoppage in transit, as soon as the seller gives the possession to the carrier, यहाँ पे सेलर जैसे गुड्स का पोजेशन कैरियर को देगा, किस लिए, कि ताकि वो गुड्स बायर तक पहुंच जाए थ्रू कैरियर, देन एट दैट टाइम द सेलर लूजेस द पोजेशन ऑफ द गुड्स. फिर सेलर का पोजेशन हट जाता है और कैरियर के पास गुड्स का पोजेशन आ जाता है एंड गुड्स जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं बायर के पास. बीच में सेलर को पता चलता है कि दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है. Then at that time the seller has the right to exercise the stoppage in transit. फिर सेलर एक नोटिस के थ्रू बोलेगा कि भाई प्लीज स्टॉप दैट ट्रांसमिशन एंड आई वांट द डिलीवरी बैक. ठीक है, फिर सेलर कैरियर को बोलेगा कि आप उस ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दो
और बायर तक मत पहुंचो और आई वॉन्ट द डिलीवरी बैक. ओके, बट देर आर 3 सिचुएशन. नंबर 1, अगर जो कैरियर है वो बायर का एजेंट हुआ, ओके, या बायर ने उसे भेजा है अपने बिहाफ में कि आप जाके गुड्स की डिलीवरी लो, देन एट दैट टाइम द सेलर डज नॉट हैज द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. वो जैसे ही फिर गुड्स को डिलीवर कराएगा कैरियर को, वो उसके पास राइट टू लेन खत्म हो जाएगा और स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो अप्लाई नहीं कर सकता है. सेकेंड सिचुएशन, जब जो कैरियर है वो सेलर का एजेंट है, देन एट दैट टाइम और बीच में उसे पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, देन ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू लियन एज वेल एज स्टॉपेज इन ट्रांजिट. बिकॉज यहाँ पे जो कैरियर है वो सेलर का एजेंट है, तो यहाँ पे जो गुड्स का पोजेशन है दैट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. ओके, सो ही कैन रिटेन द गुड्स और वो शिप को वापस लेते आएगा, या जो भी कैरियर है, जो भी रेल है या शिप है, वो वापस आ जाएगा गुड्स. ओके, नंबर 3 सिचुएशन, जब कैरियर ना सेलर का एजेंट है ना बायर का एजेंट है, देन एट दैट टाइम सेलर विल सेंड अ नोटिस टू द कैरियर कि प्लीज आप उस ट्रांसमिशन को रोक दो और आप मेरे गुड्स को वापस लेते आओ. देन एट दैट टाइम द सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 50. Now we come to section 51, which talks about the duration of transit. In this, the seller has the right to exercise the stoppage in transit when the goods are in the stage of transmission. जब तक गुड्स बायर के पास नहीं पहुंचे हैं, तब तक सेलर के पास है कि वो बीच में कभी भी गुड्स को रोक के वापस डिलीवरी ले सकता है, वापस possession regain कर सकता है. And there are various situation when the transit will end. First, जब बायर उस गुड्स को सपोज कैरियर एजेंट है बायर का, then at that time the stoppage in transit will end. जैसे ही उसको डिलीवर करेगा, stoppage in transit will end. Second situation, when the buyer has the possession of the goods. अगर बायर के पास गुड्स का possession आ गया है, then at that time the stoppage in transit will end. Third situation, जब कैरियर है वो ये चीज बायर को एक्नॉलेज कर रहा है, then I am holding a good on your behalf. मेरे पास गुड्स है और मैं आपके बिहाफ में गुड्स को होल्ड कर रहा हूं, then in that case also the stoppage in transit will end. फिर अब सेलर उसको नोटिस देके गुड्स रोक नहीं सकता है. ठीक है, फिर जो कैरियर है वो बायर के बिहाफ में विल एक्ट एज द एजेंट. ओके, सो दीज आर द वन मोर थिंग, व्हेन द कैरियर, अगर सपोज कैरियर ने बिना सेलर के नोटिस के बायर को बोला है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द गुड्स, ऐसे ही, मतलब यहाँ पे प्रॉपर उसने सेलर ने कोई नोटिस नहीं दी कैरियर को डिलीवरी रिफ्यूज करने के लिए, लेकिन कैरियर बस बोल दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, मैं आपको गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, देन एट दैट टाइम द स्टॉपेज इन ट्रांजिट विल टर्मिनेटेड. ठीक है, फिर यहाँ पे ये चीज नहीं है, फिर वो सेलर आके गुड्स का पोजेशन नहीं मांग सकता, बिकॉज यहाँ पे जो कैरियर ने जो रिफ्यूजल किया है वो विदाउट नोटिस किया है. सो एट दैट टाइम द बायर हैज द राइट टू टेक द पोजेशन. वो फिर सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज कैरियर ने विदाउट एनी नोटिस गुड्स को डिलीवर करने में रिफ्यूज कर दिया है. बट अगर बायर रिफ्यूज करता है कि मैं गुड्स नहीं लूंगा या मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, देन एट दैट टाइम द स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट विल नॉट एंड. फिर सेलर के पास राइट है कि वो उस गुड को वापस ले सकता है एंड उसको फिर से रिगेन कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे बायर रिफ्यूज कर रहा है उस गुड्स को उस गुड्स की डिलीवरी लेने में. सो एट दैट टाइम द सेलर कैन take the possession of the goods by applying the right of stoppage in transit. This has been provided under section 51. Section 52 talks about how stoppage in transit is affected.
So in this, as soon as the unpaid seller gets the information that the buyer has become insolvent and the goods are still in transit, means अभी buyer तक goods पहुंचे नहीं है, वो अभी भी transmission form में है, then at that time the seller has the right to give notice to the carrier. वो carrier को notice देंगे in order to regain the possession of the goods. वो बोलेगा भाई आप प्लीज इस ट्रांसमिशन को स्टॉप करके मेरे गुड्स मुझे वापस दे दो. ओके, बट हेयर इट इज इम्पॉर्टेंट, जो कैरियर है वो फिर बायर का एजेंट नहीं होना चाहिए. अगर वो बायर का एजेंट हुआ देन ही कैन नॉट एक्सरसाइज, द सेलर, द अनपेड सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉपेज ट्रांजिट. ठीक है, फिर वो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो कैरियर है वो उसने डिलीवरी ले ली है गुड्स की. ओके, सो हियर इट इज इम्पॉर्टेंट दैट या तो किसी कैरियर किसी का एजेंट ना हो या वो फिर सेलर का एजेंट हो, देन ओनली ही कैन गेट बैक द possession of the good. And the seller will be bound to pay all the charges which are necessary to get the possession of the goods. ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस और जो भी चार्जेस लगेंगे उस गुड्स की डिलीवरी वापस लाने में द सेलर इज बाउंड टू पे ऑल दैट charges. This has been provided under section 52. Now, the difference between the right to lien and the right to stoppage in transit. So, the first difference in right to lien is that the seller must have the possession of the goods. In stoppage in transit, the seller does not have the possession of the good, but the carrier has the possession of the good. The second difference in right to lien is that the seller has the right to retain the possession of the goods, but in stoppage in transit, the seller has the right to regain or resume the possession of the goods. यहाँ पे वो उसके पास possession नहीं होता है, but वो regain करता है possession को वापस से. The third difference is in right to lien, the right to lien can be exercised whether the buyer is insolvent or solvent. वो कभी भी अप्लाई कर सकता है. जरूरी नहीं है कि जब बायर इंसॉल्वेंट हो तभी राइट टू लियन एक्सरसाइज हो सकता है. जब वो पे करने के लिए फेल हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, देन ऑल्सो द राइट टू लियन कैन बी एक्सरसाइज. बट इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट दिस राइट कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट. जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाएगा देन ओनली द स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज. So this was a difference between right to lien and stoppage in transit. Now the last topic, that is the right to resale. This has been provided under section 54. There are three conditions in which the unpaid seller can exercise this right to resale. Number one, when the goods are of perishable nature. अगर goods इस nature के हैं कि it is important कि उसका सेल हो जाए, then at that time the unpaid seller has the right to resell the goods. Number two, when the unpaid seller, जब unpaid seller ने right to lien भी ट्राई कर लिया, stoppage in transit भी ट्राई कर लिया, then also buyer fails to make the payment, then by giving notice to the buyer the unpaid seller can resell the goods. फिर वो एक नोटिस देगा बायर को कि आई हैव गिवन यू द सफिशिएंट टाइम, फिर भी आपने मुझे पेमेंट नहीं किया है, एंड एट दैट टाइम द अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स. थर्ड कंडीशन, व्हेन द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स हिज राइट टू रीसेल इन केस ऑफ बायर्स डिफॉल्ट. अगर सेलर पहले से ही एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही ओनली बोल देता है कि अगर आप मुझे टाइमली पे नहीं करोगे या आपसे कोई डिफॉल्ट हो जाएगा, देन आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज दिस राइट टू रीसेल एंड मैं अपने गुड्स को सेल कर दूंगा. ओके, दीज आर दी थ्री कंडीशंस इन विच रीसेल कैन बी एक्सरसाइज. बट वन मोर थिंग हियर इट इज इम्पॉर्टेंट. सपोज अगर अनपेड सेलर ने अपने गुड्स को रीसेल किया, ओके, बट ऐसा उसको जो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था, जो बायर से मिलना था, वो अमाउंट उसको रीसेल करने पे नहीं मिला, देन उसको उसकी वजह से लॉस सफर करना पड़ रहा है. देन द अनपेड सेलर हैज द राइट टू स्यू एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द बायर. फिर वो अनपेड सेलर बायर से जो भी पैसे, जो भी लॉस हो रहा है
he can recover that amount from the buyer, वो बायर से रिकवर कर सकता है. बट अगर उसको गेन हो रहा है तब उसको वो गेन का पैसा नहीं देगा. अनपेड सेलर को कोई लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द रीसेल, सो ही कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द बायर. बट इट इज इंपॉर्टेंट कि उसने बायर को एक प्रॉपर नोटिस दी हो अबाउट द रीसेल. बट वेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, देन इन दैट केस द नोटिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 54 सब क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट अगर अनपेड सेलर ने गुड्स को रीसेल किया है, देन उसका जो बायर है, जो न्यू बायर है, देन दैट बायर विल हैव अ गुड टाइटल. फिर ऐसा मान लिया जाएगा उसके पास एक गुड टाइटल है एंड ही विल एक्ट एज अ बायर. एंड वन मोर थिंग इन दिस, ऑल्दो उसने रीसेल किया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो गया जो ओरिजिनल बायर और सेलर के बीच में बना था. बट यहाँ पे अनपेड सेलर हैज द राइट टू क्लेम द डैमेजेस. जो भी डैमेजेस उसने सफर किए हैं वो पुराने वाले बायर से क्लेम कर सकता है, एंड ऑल्सो जो भी उसको लॉस सफर हुआ है वो ओरिजिनल बायर से क्लेम कर सकता है. So this was all about the right of unpaid seller. There were 3 rights: right to lien, right to stoppage in transit, and right to resale. So by this, the Sales of Goods Act is completed. Thank you.